Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced. And in today day 15 of this playlist, we are going to see what are STLs in C++. Okay, so काफी ज्यादा important topic है और मान लो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की आपकी बेस यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और STL काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, so we will see what is STL in C++ and then we will see कि STL के अंदर में क्या क्या आता है, ठीक है। and then we will see one example and from next video हम सारे के सारे STL functions और algorithms एक एक करके देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और हर वीडियो में उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। फाइन, सो बिफोर दिस let's see what Newton School is and what they are doing for you. So basically it is an e-learning platform which are providing you training for being a full stack developer. They provide you courses and training for data structure and algorithms for different programming languages and for development for MERN stack and other things. Okay, so you just have to come to their website and check pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until you get placed in any of these companies. They also have tie up with almost 300 companies of India, okay, like 7-Eleven, ThoughtWorks, Unacademy, Dream11, Deloitte, Meesho. Okay, so आपको एक सिंगल पेनी पे करने की जरूरत नहीं है जब तक आप मिनिमम 5 लाख सीटीसी में प्लेस नहीं हो जाते हो। ओके, these days they also have a new initiative known as Launchpad, under which they are providing you free training. Okay, absolutely free training. For you just need to sign up in their website and start now for free. Okay, and there you can get free courses of different languages and web development and everything, data structures and algorithms. You can also get quizzes and contests for competitive programming. Okay, so just come to their website and check everything and explore everything. Okay, and get the most out of it. So let's go to our today's video. But before that, you can check this C++ playlist in which I am posting one video every day. Okay, so till now I have taught everything in C++ language. Okay, सारी basics मैंने पढ़ा दी हैं and now from this video we are going to start STL in C++. Okay, which is very important thing for competitive programming. So let's head towards our video. Okay, so basically first thing we need to know is what is STL. Okay, so STL होता क्या है basically, पहली चीज तो हमें यही पता होनी चाहिए। Full form of STL is standard टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके, तो हमने प्रीवियस किसी वीडियो में टेम्पलेट देखा था कि टेम्पलेट क्या होती है। टेम्पलेट कुछ प्री बिल्ट कोड जो आप रख लेते हो और आपको इजीनेस हो जाती है सिंपली कोड करने में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और अपने कोडिंग में स्पीड ला सकते हो। ओके, सो इसी तरह तुम कुछ इसको भी ले सकते हो कि किसी ने तुम्हारे लिए प्री बिल्ट फंक्शंस, एल्गोरिदम्स, काफी सारी चीजें, ठीक है, काफी सारी चीजें एक टेम्पलेट बना के रख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके कुछ एक टेम्पलेट्स बना दिए हर चीज के लिए, काफी सारे फंक्शंस के लिए, एल्गोरिदम्स के लिए, कंटेनर्स बना दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। कंटेनर्स बना दिए जिनको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो कोड में। लाइक तुम्हें अगर मान लो कोई नंबर सर्च करना है, ओके, तो तुम कोई एरे गिवन है और तुम्हें उसमें पूरे में नंबर सर्च करना है, ओके, तो तुम क्या करोगे, तुम पूरा का पूरा कोड लिखोगे और सारा नंबर चेक करोगे, ठीक है। बट किसी ने तुम्हारे लिए एक प्री बिल्ट फंक्शन सा बना दिया है, लाइक सर्च करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और तुम उसमें जस्ट अपना एरे लिख दो, जो भी तुम्हारा एरे है, और जो तुम्हें नंबर सर्च करना है एक्स दे दो, और वो तुम्हें बता देगा सिंपली कि ये तुम्हारा नंबर है इस एरे में कि नहीं है, ठीक है। तो STL क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे तुम्हारे फंक्शंस और एल्गोरिदम सबके कुछ टेम्पलेट्स हैं जो तुम डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी में यूज कर सकते हो। ओके फाइन, नाउ इसमें होता क्या क्या है, अगर मैं डायरेक्टली देखूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें मैंने अभी जैसे बोला था कि फंक्शंस,
एल्गोरिदम्स, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एल्गोरिदम्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं और इटरेटर्स होते हैं। एक एक करके हम देखते हैं ये सारी चीजें होती क्या क्या, ठीक है। अब अगर एल्गोरिदम्स देखो तो एल्गोरिदम्स दो अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट हम इतना तो जानते हैं कि मान लो बाइनरी सर्च हो गया तुम्हारा, ठीक है। और बाइनरी सर्च भी अभी हमें नहीं पता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब आई गेस तुम लोगों को पता होगा कि यू हैव सम एरे 5 6 4 3 2 1, ठीक है। तुम्हें इसको अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। तो ये एक एल्गोरिदम है, ओके, जिसमें तुम्हें क्या करना है, एक एरे दी जाएगी और तुम्हें उसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट इन द सेंस किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम है। इसी तरह सर्च, अब ये बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ये अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। लेकिन एक इसका मेन टाइप क्या है? सर्च। तो ये सर्चिंग एल्गोरिदम है। सर्चिंग एल्गोरिदम में तुम्हें किसी नंबर को सर्च करना है किसी कंटेनर में, ओके। तो इसी तरह कई सारी एल्गोरिदम्स हैं। उन सब के लिए अपने STL में डायरेक्ट फंक्शंस हैं या टेम्पलेट्स हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो, ओके। तो एल्गोरिदम्स, STL के अंदर एल्गोरिदम्स का ये यूज है, ठीक है। सेकंड, कंटेनर्स। अब तुम कहोगे कि हमारे पास एक एरे कंटेनर तो है ऑलरेडी, है ना। कंटेनर क्या होता है? जिसमें तुम कई सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकते हो। बट तुम कहोगे कि एरे कंटेनर है तो हमने फिर बाकी सारे कंटेनर्स क्यों लिए, इतने सारे, लिस्ट, क्यू, स्टैक्स, एरे, प्रायोरिटी क्यू, वेक्टर्स, ओके। तो अब अगर तुम एरे देखो, एरे में तुम क्या कर सकते हो? सेम डेटा टाइप की वैल्यू कुछ कंटीजियस लोकेशंस पे डाल दी तुमने। अब तुम क्या कर सकते हो? इनको एक्सेस कैसे कर सकते हो? इनके इंडेक्स से, ठीक है। अब इसी एरे में तुम्हारे कई सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। कई सारे तुम्हारे फंक्शंस हैं जो तुम्हें मान लो इस डेटा पे परफॉर्म करने हैं। अब मैंने एक चीज बताई थी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें कहीं पे भी कोई भी हम चीज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पर भी हम एरे यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो हम ये दिमाग में रख रहे हैं कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम लेनी है, ठीक है। तो अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हारी एरे जो होती है, यूजिंग एरे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी यूज एरे एज अ कंटेनर, in that case we need these containers, okay। इन सारे कंटेनर्स के क्या हैं, कुछ कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस है, ठीक है। इन सारे कंटेनर्स की कुछ कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू कैन से, ठीक है। मैं देखो ऐसे समझा सकता हूं, अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लो तो तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हें कोई एक वर्क है, तुम्हारे पास एक वर्क है W, ठीक है। मैं इस सबको क्लियर कर देता हूं और एग्जाम्पल भी बोलता जाता हूं अपना। तुम्हारे पास एक वर्क है W, ठीक है। अब ये वर्क जो है, इसके लिए तुम्हें कोई एक मैन चाहिए वर्क करने के लिए, मैन और वुमेन, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि अब मेरे पास ये मैन और वुमेन जो है ये एरे था, ठीक है। तुम कह रहे हो मेरे पास तो ये था तो मैं इससे डायरेक्टली वर्क करवा लूंगा। बट मान लो ये वर्क जो है, ये वर्क है प्लम्बिंग का, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे आदमी को और सारे वुमेन को प्लम्बिंग का वर्क आता हो, तो हम क्या ढूंढेंगे उसके लिए? एक प्लम्बर ही ढूंढेंगे जो हमारा काम जल्दी कर दे। अगर हम किसी को भी डाल देंगे कि प्लम्बिंग का काम करो तो टाइम लगेगा ना उसमें। दैट्स व्हाई वी ओनली सर्च फॉर प्लम्बर एंड वी असाइन दिस प्लम्बिंग वर्क टू ओनली प्लम्बर, ओके। इन द सेम वे हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट जो हमें प्रोग्राम में चाहिए होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कंटेनर की, और हम उस टाइम पे इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि कंटेनर्स, हर कंटेनर की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और इसीलिए हम उसको किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये सारा देखते हुए चलेंगे, यू नो, ओके। एक एक कंटेनर देखेंगे और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस देखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है, फाइन।
एट द एंड वी हैव इटरेटर्स इन अवर, ठीक है, इटरेटर्स है हमारे पास। अब हमने एल्गोरिथम्स देख ली, कंटेनर्स देख लिए, इटरेटर्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे कंटेनर्स हैं, मान लो मैंने वहां पे लिखा था वेक्टर, प्रीवियस स्लाइड में मैंने लिखा था वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर में तुम्हारा इटरेट करने के लिए, जैसे मैं एक एरे लेता था अगर, ठीक है, और एरे में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मैं उसमें अगर लूप चला के मुझे सारे इंडेक्सेस एक्सेस करने हैं, तो मैं क्या करता था, आई इंडेक्स लेता था 0 से और साइज तक चलाता था, ठीक है। तो मैं इसको कहता था कि ये काइंड ऑफ इटरेटर है, ठीक है, जो कि किसी इंडेक्स को उसकी वैल्यू से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कंटेनर्स में भी क्या होता है, कुछ इटरेटर होता है, ठीक है, और वो इटरेटर क्या करता है, पॉइंट एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एसक्यूएल कंटेनर, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या होता है एरे में और इसमें, कि एरे में जो वैल्यूज होती हैं वो कंटीन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होती हैं, इसलिए हम i इज इक्वल टू 0 से डायरेक्टली वहां तक चल जाते हैं, ठीक है। बट वेक्टर और बाकी सारे कंटेनर्स में हम क्या करते हैं, जो इटरेटर लेते हैं i या फिर it यू कैन से, ठीक है, वो हम स्टार्टिंग एलिमेंट को देते हैं और हर इंडेक्स पे पूरे के पूरे एरे में इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मान लो वेक्टर है और वेक्टर में कुछ वैल्यूज स्टोर्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो जो हमारा इटरेटर होगा, हम 0 से अगर स्टार्ट करें तो वो 0 पे फिर 1 पे सारी की सारी वैल्यूज पे इटरेट करेगा, ठीक है। इटरेटर बस मेमोरी एड्रेस का यूज करके पॉइंट करता है, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स, बिगिन, एंड, बैक, फ्रंट, नेक्स्ट, प्रीवियस, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बिगिन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट, एंड से लास्ट एलिमेंट और पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेक्टर, बैक से भी लास्ट एलिमेंट, ठीक है, फ्रंट से फ्रंट एलिमेंट, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो मेन थिंग होती क्या है कि ये सारे के सारे सब कंटेनर्स में यूज नहीं हो सकते, कुछ स्पेसिफिक इटरेटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंटेनर्स में यूज होंगे, तो ऑब्वियसली हमें उन सबको एक साथ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम कंटेनर्स पढ़ते जाएंगे और कंटेनर्स के प्रोग्राम बनाएंगे, यूज में आते जाएंगे, वो अपने मन से याद होते जाएंगे। मैंने कभी भी STL लर्न नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिंपली स्टार्ट किया यूज करना और अब मुझे सारे के सारे कंटेनर्स और एल्गोरिथम्स ऑलमोस्ट यूज में हैं, ओके। सो इन दिस वे वी कैन इजिली अंडरस्टैंड STL, और हम सारा का सारा जब एग्जाम्पल और प्रोग्राम करेंगे STL के, तो हमें सारे के सारे हैबिट में आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको मिस तो एकदम करना ही नहीं है, ओके। तो बुक मार्क कर लो इस प्लेलिस्ट को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई पोस्ट 1 वीडियो एवरी डे, तो हम जल्दी जल्दी अपना C++ कंप्लीट कर सकें, ओके। Thank you guys for watching this video. I'm asking you to again visit this Newton School website and get the most out of it. Check their pay after placement program and also check their launchpad initiative. And if you want to just get hired for and or get prepared for your placement purposes, just check this website of Newton School and get the most out of it. Thank you guys for watching. Subscribe this channel and like this video.